में दी जाएगी तकनीकी शिक्षा की तालीम। जी हाँ, ये इस वीडियो का हिंदी शीर्षक है और इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसका रिलायबल रिसोर्स इज एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू entitled A Language Ladder for Education Roadblock. And this editorial is written by Honorable Vice President our country, M. Venkaiah Naidu ji. So what is the context of this article pertaining regional languages as medium of instruction for engineering studies, for BTECs, and what have been the latest happenings around the academic world, and what going to be followed in this particular attempt to Indianize education and to strengthen our education system by much required changes in connection to NEP 2020 National Education Policy 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उनका क्या रिलेशन है, वो सभी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस वीडियो के माध्यम से जो मुख्य क्वेश्चन है, not the all questions but certainly the major questions that I'm going to take up in this video are on your screen. First of all, I would like to take up the first question, that is, what is AICET's latest decision regarding medium of instruction? That is All India Council of Technical Education, AICET का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर कौन सा ऐसा फैसला है, जो लेटेस्ट फैसला है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। सेकंड वन इज ऑन विच पॉइंट यूनेस्को हैज बीन लेइंग एम्फेसिस, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर यूनेस्को ने एम्फेसाइज किया है। What did Indian physicist and Nobel laureate Sir C.V. Raman observes on medium of instruction? So हमारे देश के जो फिजिस्ट नोबेल लॉरिएट सर सीवी रमन का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट हैज बीन द आयरनी आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम की आयरनी क्या है। व्हाट आर द मेजर ग्लोबल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर ग्लोबली कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रिवलेंट हैं एकेडमिक वर्ल्ड में। Next important question, as I have already mentioned, that these are not the all questions that I'm going to take up in this discussion, but these are some of the major questions, important questions. So what is the biggest bottleneck for more students to take up higher education in the native languages? कौन से ऐसे सबसे बड़ी समस्याएं हैं हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स को फेस करनी है रिगार्डिंग नेटिव लैंग्वेजेस एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उनको पढ़ने और पढ़ाने का, पठन और पाठन का जब माध्यम बनाते हैं, तो कौन सी दिक्कतें हैं जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ेंगी। सो विद दीज क्वेश्चंस I would like to start the discussion following the previous pattern outtak, that first I would be taking up the vocabulary portion pertaining to this article, and then we would be taking up the discussion on this. So let me share the current slide, and next crucial compositions. So academic landscape of the country, हमारे राष्ट्र का शैक्षणिक लैंडस्केप, भूभाग, इन ट्यून विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर, उसके कनेक्शन में। मॉन्यूमेंटल मूव ओपन्स टू द डोर टू अ होल वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स। सो टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स और इन द जनरल पब्लिक or anyone as per the context, as per the requirement of your context, you can use this to instill confidence in somebody. One of the key drivers in this regard,
A cursory look at the global best practices in dash 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 as per the requirement. And cursory look is a quick look, जिसको हम हिंदी में सरसरी तौर पे कहते हैं. So that is cursory look. India is a land of immeasurable talent. So this is in the crucial compositions, and then we take up the words. The first word is germane to something. Our ideas, remarks, etc., connected with something in an important or appropriate way. Synonym is relevant. Usage is the report contains matters that are germane to the case. So germane to का मतलब किसी चीज के संदर्भ में, और वो भी आवश्यकता के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में. For example, the report contains matters that are germane to the case. केस के संदर्भ में जो जरूरी जानकारी है वो इस रिपोर्ट में है. Pertinent, appropriate to a particular situation. किसी सिचुएशन में कोई चीज जो कारगर होती है, that is pertinent. Relevant, सार्थक, appropriate and germane, the previous word being used as synonym so as to enhance your familiarity with this word germane. Roadblock. A roadblock is a barrier, blockade and obstruction. A barrier put across the road by the police or army so that they can stop and search vehicles. That is roadblock. अवरोध पैदा कर देना. Impede. It is IMPED. N is used here by mistake, and it is impede, to delay or stop the progress of something. Synonym is hinder, hamper, imperil, loom and frighten. So these are the synonyms. Next we take up languish. To be forced to stay somewhere or suffer something unpleasant for a long time. Its synonyms are deteriorate, dwindle, faint. कम होना और खराब होना, faint होना. That these are the synonyms. Impart, to pass information, knowledge, etc. to the other people. दूसरे लोगों तक कोई सूचना और कोई ज्ञान को pass on करना. That is one of the synonyms for impart. Convey, lend, transmit, pass on. Highbrow, interested in serious artistic or cultural ideas. उच्च सांस्कृतिक और कलाकृत आइडियाज में जो इंटरेस्ट होता है, that is highbrow, and it means intellectual. Opposite is lowbrow, and we can compare it with middlebrow. Grim, looking or sounding very serious. जब कोई चीज बहुत ज्यादा सीरियस नजर आने लगे और बहुत ज्यादा सीरियस प्रतीत हो, that is grim. Its synonyms are bleak, gloomy, horrid. And then the final slide on vocabulary. Bottleneck. Bottleneck का मतलब impediment, barrier, hindrance. रुकावट, अवरोध. So अवरोध के लिए एक आपने इसी वीडियो में एक वर्ड सीखा, रोड ब्लॉक, and then bottleneck. Leverage. Leverage means advantage, weight, edge. दूसरों के मुकाबले जो आपको फायदा होता है. The ability to influence what people do. Synonym is advantage, weight, edge. Nascent. Nascent means beginning to exist. किसी चीज की शुरुआत हो रही है, उसके existence के अस्तित्व की शुरुआत को. Synonyms are rudimentary, elementary, incipient. Squid of information, not accurate or correct. जो सूचना सही नहीं है, exact नहीं है, that is squid. Synonyms are distorted, alter, bias, misrepresent. Vista, a beautiful view, for example, of the countryside, a city, etc. Its synonyms are panorama, landscape, glimpse, झलक. So vista का मतलब एक बेहतरीन सुंदर लैंडस्केप कंट्री साइड का हो, so that is vista. So this has been in the vocabulary portion, and now we would be taking up the questions, the ideas being discussed in this article. So first of all, the writer
starts with a kind of positive note that by the context, let me explain the context first. The context is that 14 colleges in our country across 8 states, they have started offering BTech courses in selected streams, in selected branches of BTech in their regional languages. So कौन सी वो रीजनल लैंग्वेजेज हैं जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो पढ़ाई है, जो तकनीकी शिक्षा की तालीम है, वो क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू की गई है सिलेक्टेड ब्रांचेस में. सो उन लैंग्वेजेस में सम्मिलित हैं हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमीज, पंजाबी एंड उड़िया. ये भाषाएं हैं जिसमें जो कि अभी AICT के लेटेस्ट डिसीजन के हिसाब से ये लैंग्वेजेस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं. AICT हैज परमिटेड दीज लैंग्वेजेस टू बी द पार्ट ऑफ medium of instruction to the students. So ये 11 नेटिव लैंग्वेजेस हैं जिनको AICT ने अप्रूव किया है, और ये इन भाषाओं में जो लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं वो इसी एकेडमिक ईयर से हमारे देश के 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे. उसके साथ ही साथ द सेकंड क्वेश्चन दैट वाज ऑफ perennial significance was that on which point UNESCO has been laying emphasis. UNESCO का पूरा जो फोकस है वो कौन से पॉइंट पे है? So UNESCO का जो पूरा फोकस है that is on the fact that children's acquiring capabilities to receive the knowledge is much more higher in their regional languages. UNESCO का ये मानना है कि बच्चों का जो पिकअप है, जो उनकी शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता है, वो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश. एंड एट द सेम टाइम दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ एक्विजिटिंग नॉलेज इन द रीजनल लैंग्वेज इज जर्मेन टू बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ आइडेंटिटी. अगर बच्चा अपनी खुद की क्षेत्रीय भाषा में नॉलेज ग्रहण करता है तो उससे उसका आत्मसम्मान और आत्मबल दोनों मजबूत होते हैं और उसकी पहचान भी कंसोलिडेट होती है. इसीलिए फोकस रहा है यूनेस्को का भी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में. साथ ही साथ तीसरे क्वेश्चन के रूप में हमने जिक्र किया था कि CV रमन जो नोबेल लॉरिएट हैं, फिजिस्ट हैं, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेके क्या ऑब्जर्वेशन है. सो Sir CV Raman observed, and I quote, that we must teach sciences in our own mother tongue. Otherwise, science will become a highbrow activity. It will not be an activity in which all people can participate. So the damage that was being visualized by Sir CV Raman was that if sciences are being taught in English, then it would be a हाइब्रो एक्टिविटी. ये हाइब्रो एक्टिविटी रहेगी क्योंकि इस पे केवल उन्हीं लोगों का आधिपत्य रहेगा जो उस लेवल पे एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, एंड दैट वे इट वुड बी लिमिटेड टू एलीट क्लास ओनली. तो साइंसेस की स्टडी केवल अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे. इसलिए उन्होंने कहा कि साइंस की जो टीचिंग है दैट शुड बी इन आवर मदर टंग सो दैट एवरीबडी कैन बी अ पार्टिसिपेंट इन लर्निंग साइंसेस. उसके बाद में बात आती है कि हमारी शिक्षा के अंदर कौन सी ऐसी आयरनी है. व्हाट हैज बीन द आयरनी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. सो द बिगेस्ट आयरनी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज दैट वी आर renowned for providing phenomenal knowledge in sciences, in law, in humanities, but paradoxically by providing this vast treasure of Indian knowledge through English medium, we are denying our own people to get the benefit of this knowledge. So this is the biggest irony. जो भारतीय शिक्षा जो वर्ल्ड रिनाउंड है, साइंसेस की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, लॉ की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो हमारी शिक्षा बड़ी उच्च कोटि की है, लेकिन उसको केवल अंग्रेजी माध्यम के
अंग्रेजी के माध्यम से प्रोवाइड करने के चक्कर में, उसकी वजह से वी अलाउ आवर ओन पीपल टू नॉट टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। हम वही नॉलेज अपने खुद के लोगों को डिनाई कर देते हैं ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश मीडियम। एंड दैट्स व्हाई इट इज राइटली सेड बाय वन ऑफ माय टीचर्स दैट इंग्लिश हैज अनडन सो मेनी टैलेंट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंग्लिश ने बहुत सारे टैलेंट्स को बर्बाद कर दिया। And that's why there is a need to teach sciences in regional languages. अब उसके बाद में हम बात करते हैं, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या हैं, व्हाट आर द ग्लोबल प्रैक्टिसेस टू टेक टू अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम एक कर्सरी लुक के आधार पर देखें, एक सरसरी नजर से देखें, तो G20 के जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को तरजीह देते हैं, उनको तवज्जो देते हैं। और अगर बात की जाए पर्टिकुलरली कोरिया की, सो इन कोरिया 70% ऑफ द यूनिवर्सिटीज टीच इन कोरियन। कोरिया में 70% जो विश्वविद्यालय हैं वो कोरियन भाषा में पढ़ाते हैं। एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू वुड बी वेरी प्लीज्ड टू नो दैट वे बैक इन 2018 साउथ कोरियन गवर्नमेंट banned teaching of English prior to third grade in schools. Schools में थर्ड ग्रेड से नीचे अंग्रेजी पढ़ाने पर साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने 2018 में प्रतिबंध लगा दिया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण, इतना डेयरिंग स्टेप हमारे यहाँ पे अभी तक नहीं लिया गया है। और उसके साथ ही साथ अगर जापान की बात की जाए, जर्मनी और तो जापान में भी all the university programs are taught in Japanese. China too. In China, universities use Mandarin as the medium of instruction. और अगर यूरोप की बात की जाए तो फ्रांस और जर्मनी में भी अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस को तरजीह दी जाती है। और जर्मनी में तो पर्टिकुलरली फ्रेंच में तो ओनली फ्रेंच पॉलिसी है, फ्रेंच ओनली पॉलिसी। So these are, and in Germany 80% of the master's program are taught in German. कनाडा की हम बात करें, सो कनाडा showcases a sound approach to education. एक अच्छी बेहतरीन अप्रोच है कनाडा में। और कनाडा के अंदर पर्टिकुलरली इंग्लिश स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसकी डोमिनेंस है। उसके अलावा इन द पर्टिकुलर प्रोविंसेस इन क्यूबेक, a province with a majority of French speaking population, French is the medium of instruction. So globally अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ग्लोबली जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो चाहे यूरोप की कंट्रीज हैं चाहे वो G20 कंट्रीज हैं, सभी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस देती हैं। अब बात आती है कि ये जो ग्रिम सिचुएशन है हमारे यहाँ पर हमारे देश में, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसको इम्प्रूव करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है that we must begin with imparting primary education at least up to class 5th in students mother tongue, gradually scaling it up। कम से कम 5वीं तक बच्चे को जो पढ़ाई है वो उसकी मदर टंग में हम करवाएं और उसके बाद फिर उसको स्केल अप करें। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, while the initiative of the 14 engineering colleges is commendable, we need more such efforts all across the country। जो अभी 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने जो पहल की है 8 स्टेट्स में, उस पहल को एक राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाने की जरूरत है ताकि प्रोफेशनल कोर्सेज को नॉट ओनली बीटेक बट ऑल अदर प्रोफेशनल कोर्सेज माइट बी टॉट इन regional languages। Third might be that private universities and private institutes must join hand and offer a few bilingual courses to begin with, because वो कहा जाता है कि if science can create problems, science should or must resolve those problems also। तो अगर ये इंग्लिश मीडियम का पूरा जो जिसको हम एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, if we go deep into European hegemony, तो वो प्रोपेगेंडा that has propelled up
through private institutions, because it was not the English medium was not introduced in government schools for that matter. It was introduced in private schools, and all these the entire edifice of private institutions, private academic institutions, has been there on the cornerstone for the proliferation of private institutions is on English medium. So they must join hands. वो जो प्रैक्टिस है ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को कह दिया जाता है कि आपने अगर अपनी लोकल भाषा इस्तेमाल की तो आप पे 50 रुपए फाइन है, 10 रुपए फाइन है, और उसको एक लोकल की तरह से देखना, वो सारी प्रैक्टिसेस को हमें वी हैव टू बिड फेयरवेल टू दोज प्रैक्टिसेस इफ वी विश दैट आवर रीजनल लैंग्वेजेस मस्ट बी safeguarded, must be protected, and children must be given a conducive ambience to learn knowledge in their regional languages. So ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा. उसके बाद सबसे बड़ा बोटलनेक क्या है हायर एजुकेशन को रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाने के लिए? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है क्वालिटी कंटेंट. क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं है, इसलिए द ट्रांसलेशन मिशन इज टू टेक प्लेस, एंड देयरफॉर द इशू ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्ता से लबालब जो कोर्स कंटेंट है उसको प्रोवाइड करने के लिए we need to take remedial steps on urgent basis. We need to address this problem on urgent basis, जिसके माध्यम से हम अगर क्वालिटी कंटेंट क्षेत्रीय भाषा में प्रोवाइड करेंगे, so students would be taking up this whole mission positively and warmly. उसके बाद में बात आती है कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कोर्स कंटेंट को लेकर जिनको करेक्ट करने की जरूरत है. So what needs to be corrected in connection to course content? सबसे पहले, in the digital age, technology can be suitably leveraged to increase accessibility. हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिमोट एरियाज के अंदर भी जो क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर जो कोर्स कंटेंट है उसको भेज सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से. So Indian languages courses to be to the students in remote areas may be made available easily because of digitalization, and content in the digital learning ecosystem still a nascent domain in our country. जो ऑनलाइन और जो डिजिटल इकोसिस्टम में जो कोर्स कंटेंट है वो अभी बचपन में ही है, वो अपनी इन्फेंसी में है, शुरुआती दौर में है, एंड इज ग्रेटली स्विच टुवर्ड्स इंग्लिश मीडियम, और वो मैक्सिमम कोर्स कंटेंट इंग्लिश में ही मिलता है. Similar is the problem with UPSC aspirants going for UPSC examination through Hindi medium. So that is a perennial painful experience of the aspirants, that they don't find quality content in Hindi to a large extent, though there are efforts being made in the contemporary scenario. So इस English medium की वजह से it excludes the students. So अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या इस सब डिसमल की कंडीशन में कोई पॉजिटिव चीज भी हुई है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए? तो वो पॉजिटिव चीज क्या हुई है? दैट इज अ वेलकम स्टेप दैट हैज बीन टेकन regarding the collaboration between AICTE and IIT Madras. AICTE और IIT Madras के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है, और उसके अंदर ये फाइनल किया गया है कि जो स्वयं का जो एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है ओपन लर्निंग का, स्वयं के कोर्सेज को 8 रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा, और वो लैंग्वेजेस हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, मलयालम, गुजराती. So in these languages the course content of SWAYAM would be translated into these languages. So is this monumental move of introducing regional language as a medium of instruction is exclusivist? अब प्रश्न आता है कि क्या रीजनल लैंग्वेजेस को क्षेत्रीय भाषाओं को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना एक्सक्लूसिविस्ट है? क्या हम चीजों को एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्या हम चीजों को बाहर निकाल रहे हैं? नहीं.
The writer feels that it is not English versus mother tongue, rather it is mother tongue plus English approach. ऐसा नहीं है कि अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना के पढ़ाई करवाते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजी के खिलाफ हैं. अंग्रेजी एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जितनी भाषाएं आपके पास में रहेंगी, दैट वुड ओपन numerous vistas for you from the point of view of career, but you need to protect and you need to enhance your cognitive capacity, and that is best possible in your regional languages. So उसके लिए जरूरी है कि हम इस स्टेप का, that's a welcome step in higher education, that engineering colleges would be offering courses having regional languages as a medium of instruction. So I hope you must have enjoyed this video. Kindly like, share, comment and subscribe if you have not subscribed the channel. Thank you for watching this video. Thank you so much.